Hello dear students, welcome to today's class. Children, how are you all doing? Hope you all are doing fine. So children, what we are carrying on? We are carrying on with the political science, chapter 1 on equality. Yes, till now children, we have read about 3 stories. 3 very nice stories, isn't it? The stories that we have read, it has given us an insight into the problems that people face in this world. Filhal, we are not talking about world. For now, we are talking about India. In India, there is a problem of equality. So, for this equality, the 3 stories that we have done, we have already discussed it in the last class, last video, that is Kanta, Om Prakash Valmiki, and Mr. and Mrs. Ansari. Different types of inequality. We are talking about equality, but then the different kinds of problems people face in the society, we have read about it. Kanta के साथ problem ये है, she is a poor lady working in the houses of different people, earning money and trying to live a dignified job. कोशिश करती है एक इज्जत की जिंदगी जीने की. ठीक है, शायद उसको वो नहीं मिल पाता है. Might be she is not getting that which she deserves. ठीक है, कास्ट जिसमें हम बॉर्न हुए हैं, जो रिलीजन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस क्लास को बिलोंग करते हैं, वेदर वी आर मेल और फीमेल, ये जो चीजें ना, दीज आर द वेरी स्मॉल थिंग्स जिसमें वी अंडरस्टैंड व्हाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली. ओम प्रकाश वाल्मीकि इज देयर, अंसारी इज देयर, they are all treated unequally on the basis of on the difference of their caste and religion. Caste के basis पे segregation is there and religion के basis पे भी there is segregation. Caste के basis पे we read about the story of Om Prakash Valmiki. Last where we have stopped the video, there we were talking about recognizing dignity. Got it? So, Om Prakash Valmiki, Ansaris, इनके सेल्फ देखो, डिग्निटी इज योर सेल्फ रेस्पेक्ट. एक रेस्पेक्ट एवरीबडी रिक्वायर्स. उसको छोड़ के इफ समबडीज रेस्पेक्ट इज continuously hampered या continuously being talked about, इनके बारे में हमने जब बात की, ओम प्रकाश वाल्मीकि का we came to know how because of his caste, low caste, he was mistreated. In the same way we understood that क्या एक बच्चा है तो उसकी इज्जत नहीं है. ठीक है, एंड दैट टू फ्रॉम अ लोअर क्लास हो, अपर क्लास हो, चाइल्ड इज चाइल्ड. ओके, डिग्निटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्रॉपर्टी डीलर्स दे से दैट दे चेंज, वो अंसारीज आर फ्रॉम सम अदर रिलीजन, सो दे वर नॉट गेटिंग हाउस टू लिव. दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ हाउस जिसमें कि अदर कम्युनिटी पीपल वर लिविंग, दूसरी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं. द प्रॉपर्टी डीलर इज टेलिंग मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, चेंज योर नेम. हा. अंसारी सेड, हाउ कैन वी कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर रिलीजन, द रिलीजन दैट वी आर फॉलोइंग, द रेस्पेक्ट दैट इज रिक्वायर्ड बाय अस, हाउ आर वी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दैट. इसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता. So when the property dealer suggested that they can change their name, it was against their dignity, against their self-respect. So they refused this suggestion. उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल भी अपना नाम नहीं बदलेंगे. Okay? So Om Prakash Valmiki and Ansaris,
इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था. दे डिजर्व रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी. अभी एक मूवी 1975 में, आई हैड शोन यू द पिक्चर ना, जहाँ पे एक बॉय है हु इज क्लीनिंग द शूज, जूता पॉलिश करता है, एंड ही रिफ्यूजेस टू पिक अप अ कॉइन थ्रोन एट हिम. किसी ने जूता पॉलिश किया, उसके बाद उसको पैसा सब फेंक के दे दिया. तो इससे साहब जूता पॉलिश किया है, भीख नहीं मांग रहा हूं. ठीक है. सो व्हेन आई हैव डन दिस पॉलिशिंग, आई हैव नॉट लॉस्ट माई रेस्पेक्ट. सो प्लीज गिव मी मनी विथ रेस्पेक्ट. I will not compromise on my respect. Got it? That is there. Respect, self-respect should be always high. We cannot bow down in front of others uselessly. बिना किसी, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट अगर रहेगा, if I'm treated, if I'm working, I will be always keeping my respect very high. डेमोक्रेसी में क्या होता है? We will be understanding that how equality is practiced in Indian democracy. Equality in Indian democracy. Indian Constitution में क्या है? It recognizes every person as equal. Indian Constitution में everybody is equal. So Indian Constitution recognizes everybody as equal. सबके अंदर में इक्वालिटी प्रैक्टिस होनी चाहिए. इसका मतलब है एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब, एजुकेशनल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एवरीबडी इज इक्वल. सबको, किसी और एनी बेसिस वी कैन नॉट डोमिनेट एनीवन और वी कैन नॉट पुट डाउन एनीवन. किसी को भी हम नीचा दिखाने का काम नहीं कर सकते हैं. ठीक है. एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, पूरे देश में, एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, whether male or female, ठीक है, रिच, पुअर, हाँ, मेल है, फीमेल है, रिच है, पुअर है, एनी कास्ट, एनी रिलीजन, एनी ट्राइब, कोई भी ट्राइबल भी है अगर, ठीक है, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल. अब if somebody is less educated, will you disrespect that person? ठीक है. ट्राइब्स आर देयर, जंगलों में जो लोग रहते हैं. एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर इक्वल. ये सारे जो हैं, हमको इक्वालिटी ही प्रैक्टिस करनी है. नो वेयर इट इज सेड कि इनइक्वालिटी सीजेस टू. दिस इज नॉट टू से इनइक्वालिटी है नहीं. इनइक्वालिटी इट डजंट. लेकिन इन डेमोक्रेटिक इंडिया प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड. इंडिया में ऐसा है कि वी नीड टू ट्रीट एवरीवन इक्वली. कहीं से भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है. Constitution is saying that everybody is equal. No law, पूरे कंट्री में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है. अर्लियर क्या था? ऐसा कोई लॉ नहीं था टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट. अब तो इट हैज बीन मेड लॉ. अगर किसी ने जाके शिकायत कर दी कि मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, एक मैम है, उन्होंने किया है, तो तुरंत पुलिस विल कम एंड अरेस्ट.
Nobody can go against constitution. So previously no law existed. Against discrimination. पहले कोई भी लॉ नहीं था. डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, लोगों को दबाने का काम हो रहा है, एंड दिस डिस्क्रिमिनेशन वॉज वेरी मच स्ट्रांगली फॉलोड, स्पेशली कास्ट सिस्टम. द अपर क्लास पीपल यूज टू मिसबिहेव विद द लोअर कास्ट पीपल ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. बहुत बुरी तरह से लोअर क्लास के साथ अपर क्लास यूज टू बिहेव. सो दिस वॉज समथिंग वेरी रॉन्ग दैट वॉज हैपनिंग and which needed to be stopped. इसको रोकना बहुत जरूरी था. So there were several that worked to see that people are treated with dignity and as equals. सारे लोगों को हमको बराबरी का दर्जा देना है. Unequal treatment has not to be given. So recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. Constitution में some provisions are there. Some provisions are made in Constitution for equal treatment of all individuals. मतलब कुछ लॉज बनाए गए हैं. सब आर्टिकल्स आर देयर. ओके, एवरी पर्सन, सबसे पहला क्या है, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ. नंबर 1, प्लीज अंडरस्टैंड दीज प्रोविजंस. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आखिर ये किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. द फर्स्ट थिंग इज दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ. एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ. कानून के सामने सब लोग बराबर हैं. इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ओके, रामनाथ कोविंद जी से लेके कांता तक हैज टू ओबे द सेम लॉज. प्रेसिडेंट ऑल्सो इज ओबेइंग द लॉ एंड कांता इज ऑल्सो ओबेइंग द सेम लॉ. Another thing is that no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth, whether they are male or female. Second is very important. No person, किसी के साथ भी ना बुरा व्यवहार क्यों करेंगे किसी के साथ भी. We should not. Okay, so no person can be these provisions you have to remember. Can be discriminated, मतलब किसी को आप दबा नहीं सकते हैं. ओके, अगेंस्ट, ओके, डिस्क्रिमिनेट, डोमिनेट. ओके, किस बेसिस पे डोमिनेट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट. Religion is there, race is there, caste is there. ठीक है, place of birth, or male and female. Male female का भी there is lot of discrimination. Yes, some of the students were discussing in the online session कि girl and boy को लेके discrimination is there, which is also not approved. सही नहीं है. Okay, provisions पहले कोई भी law नहीं था तो everybody was discriminating, लेकिन अभी तो law बन गया है. Why on the basis of male and female the ladies can be discriminated? क्या सच में ladies को discriminate, girls को discriminate कर सकते हैं? बॉयज एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, गर्ल्स नहीं जा रहे हैं.
Third, every person has access to all public places, including playground, hotel, shop, market. You cannot ask anybody. Suppose somebody is from a lower caste. Can you tell him, don't enter this temple? आप इस टेम्पल में एंटर नहीं कर सकते हैं. क्या आप बता सकते हैं? You cannot say this to anyone. Okay? Every person. Third is, every person has access to all the public places. Please understand. Public places for public. उस वहां पे आप ऊंची नीची कैसे कर सकते हो? Okay? To all public places. Of which are the public places? Including playground, hotels. Got it? अब आप ये देखो, शॉप है, मार्केट है, कैसे आप किसी को जाने के लिए रोक सकते हो? Shops and markets. All person can use publicly available. क्या होता था ना पहले के जमाने में, in the villages there used to be well. Well means कुआं. Got it? तो ये जो कुआं होता था ना, the well was meant for everyone. कोई भी पानी पी सकता है, कुआं है तो कोई भी. But then the high caste people, they always used to say the low caste people, बिल्कुल भी मत आना इस कुएं के पास. This is the well जहाँ पे only high caste people will be having water. The low caste people cannot have water. Got it? So all persons can use publicly available wells, roads, bathing ghats. Bathing ghats are there. हाँ, जो वाराणसी में घाट्स आर देयर ना, some घाट्स were meant only for the high caste. कास्ट के हिसाब से घाट भी बटे हुए थे. इमेजिन व्हाट एन आयरनी. कैसी फनी बात है कि घाट पे एनीबडी, द रिच यूज्ड टू से, द हाई कास्ट पीपल यूज्ड टू से कि नहीं यहाँ पे पानी जो है अशुद्ध हो जाएगा, इस घाट पे मत नहाओ, दूसरे घाट पे जाके नहाओ. ओके, सो ऑल पर्सन्स कैन यूज पब्लिकली available wells, roads, bathing ghats. Untouchability has been abolished. Fourth and सबसे important is untouchability. This was the biggest malpractice. Has been abolished. छुआछूत, ऊंची जाति, नीची जाति, अपर कास्ट, लोअर कास्ट. Lower caste people has to be kept separate. They are untouchables. ठीक है, ये सारी practices जो है खत्म हो गई. These are things mentioned in the Constitution. Remember, ये हम आप, it is not written in the book just because somebody is saying that. No, it is not written by any writer. When the Constitution was being made, there were a group of people who together decided on these provisions. इन सारी चीजों के ऊपर साथ में मिलके डिसाइड किया गया है. Got it? So please remember these points. All persons are using publicly available wells, roads, bathing ghats. Okay? And untouchability. Yeah, in the previous times it used to happen. I am the high caste person, low caste people cannot touch me. ये रास्ते से भी मत जाओ. The high caste, some of the high caste people used to say, this low caste area is not meant for you. ये सड़क से मत जाना, यहाँ से जाओगे तो अपवित्र कर दोगे, सारा एरिया पवित्र होना चाहिए. This concept of पवित्र and अपवित्र existed for a very long time. Got it? So government has been trying to implement equality guaranteed in the Constitution. पहला government का ये, this is the work of government. They should ensure that all these provisions, ये जितना भी हमने पढ़ा है, these all provisions should, everybody should practice. अगर if it is not practiced,
अभी क्या है, कास्ट सिस्टम तो शहरों में आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट चिल्ड्रन प्लीज रिमेंबर कास्ट सिस्टम इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द विलेज एरियाज. कुछ गांव में कास्ट सिस्टम इज वेरी स्ट्रांगली प्रैक्टिस्ड. गॉट इट? सो दो तरीके से गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी. इम्प्लीमेंट मीन्स गवर्नमेंट हैज टू सी दैट इक्वालिटी इज प्रैक्टिस. ठीक है. गवर्नमेंट हैज implemented these policies in two ways. दो तरीके से इन्होंने इसको लागू करने की कोशिश की है. कैसे है? पहला है थ्रू लॉज. इन्होंने लॉ बना दिया. गवर्नमेंट हैज मेड लॉज. इफ एनीबडी विल बी ब्रेकिंग दीज लॉज, देखो व्हेन यू ब्रेक द लॉ तो यू गो टू द जेल, फिर आप जेल में जाते हैं. इफ एनीबडी इज ब्रेकिंग द लॉ. एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम्स. ठीक है. फर्स्ट इज गवर्नमेंट हैज मेड लॉज and second is they have made various policies and programs. क्या होता है कि इन चीजों के बारे में लोगों को पता नहीं होता है. So many government programs have been made, many policies have been made, have made various policies and programs to help the disadvantaged communities. लेकिन ये disadvantaged communities जो होते हैं ना, they are unaware. इनके अंदर में बहुत नॉलेज नहीं होती. दे आर नॉट नोइंग अबाउट मेनी थिंग्स. दिस डिसएडवांटेज कम्युनिटीज दैट आर देयर, उनको बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं होती है. तो सेवरल लॉज आर देयर इन इंडिया. इंडिया में मेनी पीपल आर फॉलोइंग दीज लॉज. एवरी पर्सन's right is to be, every person's right is to be treated equally. इंडिया में एवरी पर्सन हैज गॉट दिस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली. आप सबको बराबर का दर्जा दिया गया है. नोबडी कैन बी डोमिनेटेड. अलॉन्ग विद द लॉज, एक तो लॉज बना दिया है गवर्नमेंट ने, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाए हैं सो दैट गांव गांव में पहुंच के लोगों के अंदर अवेयरनेस लाई जाए कि इक्वालिटी है, एवरीबडी इज इक्वल. डोंट ट्रीट द लोअर पीपल अनइक्वली. सो government has made several schemes. बहुत तरीके के प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं गवर्नमेंट. एंड ये जो स्कीम बनाया है टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स, टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ communities and individuals. Different communities are there, na? And these people, the lower caste people, have been treated unequally from several centuries. कई सौ सालों तक इनके साथ बुरा व्यवहार हुआ है. Believe me children, it has happened that the lower communities have been treated badly. These schemes are to ensure greater. अब ये स्कीम जो बनाए, government has made some programs, some schemes. Schemes means making certain programs, making certain policies जिसको use करके इन लोगों को काफी फायदा होगा. So the government has made several schemes to improve the lives of communities and individuals. Okay. These schemes are to ensure
ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा लोगों को। Okay, for people who have not had this in the past, for unprivileged people. पहले के ज़माने में एक्चुअली क्या हुआ है, द लोअर कास्ट पीपल हैव बीन ट्रीटेड टू सच अ एक्सटेंट कि वो भूखे मर जाते थे, कोई उनको हेल्प करने वाला नहीं होता था, वो प्यासे रहते थे, बट पीपल डिड नॉट अलाउ देम टू यूज द वेल दैट बिलोंग टू द हायर कास्ट। अपर कास्ट के लोगों का कुआं है, प्यासे मर रहे हो, मर जाओ, इसमें से पानी नहीं पीना है। कितना इनह्यूमन है। दिस इज नॉट जस्ट, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी अनजस्ट। तो अब क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड मिड डे मील स्कीम। ठीक है, वन वेरी नाइस प्रोग्राम इज दैट गवर्नमेंट हैज कौन कौन सी स्कीम लगाई। ओके, सो आई विल राइट इट हियर so that you all know it very well. ये आपको याद भी करना है। When you are remembering, when we are talking about the government policies, then you have to mention about it that one of the schemes is midday meal. Now what is this midday meal? इसमें क्या है, दिस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड गवर्नमेंट ने सारे एलिमेंट्री स्कूल्स मीन्स क्लासेस 1 to 8 जितने भी हैं, 1 to 5 इन फैक्ट, द चिल्ड्रन विल कम टू द स्कूल, उनको स्कूल बुलाया जाएगा एंड चिल्ड्रन को क्या मिलेगा, दे विल बी गिवन कुक्ड लंच, खाना मिलेगा उनको स्कूल में। पढ़ने आ रहे हैं, साथ में खाना भी खा रहे हैं। तमिलनाडु सबसे पहला स्टेट है which had introduced this scheme, and in 2001 Supreme Court asked all the state government to begin this program in their school within 6 months. सबसे पहला स्टेट था तमिलनाडु, was the first state to launch this scheme. Got it? This was one of the things. This was one of the provisions. बाकी के provisions हम आगे next class में बात करेंगे. I just wanted to show you one picture of midday meal. Got it? Please let's see that. Children, I wanted to show you this picture. The Parliament. It is the cornerstone of our democracy. हम सारे मिलके पार्लियामेंट को उठा के रखा हुआ है हमने। मीन्स पार्लियामेंट इज़ दैट प्लेस वेयर वी हैव सेंड आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। पूरे इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव्स जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं। वहाँ पे नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटी, एवरीबडी इज़ इक्वल। ओके, एंड वी आर रिप्रेजेंटेड थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हम एलेक्ट करते हैं लीडर्स को, और उन लीडर्स को हम पार्लियामेंट में खड़े होने के लिए भेजते हैं। सो हियर जस्ट सी द डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस, किस तरह से दिखाया गया है कि दे आर द पीपल हु हैव केप्ट द पार्लियामेंट होल्डेड। इनको पकड़ के रखा हुआ है। इट इज़ जस्ट जस्ट अ पिक्टोग्राफिक प्रेजेंटेशन। खाली पिक्चर के थ्रू इसको बताने की कोशिश की गई है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट में अभी जहाँ पे ये लोगों को खड़ा किया गया है, यहाँ पे तो यू हैव पिलर्स, खंबे हैं। तो यही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। गॉट इट चिल्ड्रन? एक तो ये देख लिया, दूसरा मिड डे मील, ये देखिए। जस्ट सी हाउ पीपल आर, हाउ द चिल्ड्रन आर सिटिंग टू and having food, midday meal. This is what, just see children being served their midday meal at a government school in Uttarakhand.
कितने अच्छे से इनको मील सर्व किया जा रहा है। एंड गवर्नमेंट कभी भी पीछे नहीं रहती है, गवर्नमेंट हैज़ मेड अरेंजमेंट्स, बस ये है कि आप उस अरेंजमेंट का फ़ायदा उठाते हो। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्लास में अगेन वी विल टॉपिक, एंड दैट इज़ टॉपिक नहीं, पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में कुछ चीज़ें हमने पढ़ी है, एक दो चीज़ें और बची हुई हैं, वी विल बी डूइंग दैट। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू।